Hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Jajaram sir. How are you, sir? Very fine, sir. What about you? Good to see you, sir. Good morning to everybody. This is Shivang from Am I loud and clear? Absolutely, sir. Thank you, sir. We're just waiting to let Doctor join the webinar, sir. Koi baat nahi, Shivang. I think people are also joining. We'll just take 5 minutes off, off the target. रुक जाते हैं भी आने दो डॉक्टर साहब को भी. Yeah. Hi Rajiva, how are you? Oh, hi, Anup bhai, कैसे हैं? How are you? Good to see you. Yeah, very nice that you are very relevant and contextual. Thank you, sir. Thank you. And Dr. Ashish has been pushing me, so he's the main person to be organizing this. So मैं तो साथ दे रहा हूँ बस उनका. Right. And आपका वो मैंने आपका अब आज अनूप भाई आपका वो देख लिया था, बोर्डिंग पास देखा था मैंने आज Dr. Ashish has joined. Oh, great. Welcome, sir. Yeah, hi Shivang. Hi, Dr. Ashish. Good morning. Very good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. कैसे हैं राजीव आप? एक मिनट, वॉइस कट रही है आपकी डॉक्टर साहब. Hello. Yeah, you're clear now. So you are the Is it host. clear You now? can share your screen now as well. Okay. So the stage belongs to the moderator right now. Yeah. We're just waiting for another 5 minutes, sir. Why we are maybe another 2-3 minutes before all the other participants also join. And, yes. Definitely. We already have just let me check. I think काफी participants already आ गए हैं. I can see around 27 participants. Yeah, more than 25 are there. More than 25 आ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं. So let's wait for another 2-3 minutes, and once we'll target to start it at 11:35. Another 5 minutes, another 3 minutes, और इसको हम शुरुआत कर देंगे और ज्वाइन करते रहेंगे सब लोग participants. And would everybody to go on mute, please. And whenever you need to, I'll tell you how the session would be run. Session would be we'll spend 2 minutes on a introductory session, and another 3 minutes on the way forward by me. I would take the first 5 minutes I'll be taking, and uske baad, the entire session would be with Dr. Ashish. So what we have planned is we would majorly, Dr. Ashish would be the speaker for the day. Most of the talking he would be doing. So let's see how it moves. So we're expecting around 20 to 30 minutes Dr. Ashish would be spending with us. And post that, we could have some, if time permits, we'll have question and answer session. And one more thing, in case you get disconnected after 40 minutes, I would request, and the session is incomplete, which probably looks, because we normally take around 50 minutes. I presume we would be taking overall around 40 to 50 minutes. So what we can do is, okay, last, jab ye band agar ho jaye, if it stops, so I would request everybody to log in again. Now, the session is going to be bilingual. Mostly, जो communication की language होती है, we'll be using Hindi only. हिंदी में बात करेंगे सर. English भी कोई दिक्कत नहीं है. So we can use both the languages. Whatever people are comfortable, they can ask in Hindi or English. बात में कोई भी ऐसा कुछ restriction नहीं. Even जो मैं भाषाएं समझता हूँ, अगर
Punjabi or Bengali में भी पूछना चाहे, I can answer that, you know. So I don't mind addressing people if they're Bengalis and Punjabis in the group. So so this is how it is going to be done. And let me just check once again how many people are there. And yeah, we are on a good number, you know, actually. So this is how it is going to be. Acha. Just one more minute and we'll formally start the session now, you know. Formally isko shuru karte hain hum. And so what I'll do is we'll go ahead now. It's exactly 11:35. First of all, let me welcome Dr. Ashish. Dr. Ashish has been kind enough to be part of this. He's the key person who's been driving this, and mainly उन्हीं के initiative से ये हुआ है. He wanted to reach out to people, and I also similarly, मेरी भी इच्छा थी कि हम लोग मिलके लोगों तक पहुंचें. So Dr. Ashish has been a very senior doctor. I have known him for almost 10 years. He's been doing a wonderful job, and nowadays he's attached with Max Saket, and he's been a pulmonologist जो chest के specialist हैं, उस पे इनकी specialization उसी पे है, and which is the most needed आज के time में. That is that is what is mostly, you know, COVID से भी related हो या pollution से भी related हो. So this is the doctor which we need. But as I want to introduce you all to him as a doctor, because I know him as a doctor तो ठीक है वो है, but I know him as a friend, as a writer. You know, he writes beautiful हिंदी की बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखते हैं. अगर मौका मिला तो इनसे सुनेंगे एंड में, अगर हमारे पास टाइम रहता है कुछ. तो एक तो ये है. And secondly, I know him very well as a runner also, because we met as runners. We have been, you know, I still remember when he ran his first marathon run, and how happy and how glowing his face was the first day he did. So he's been quite physically active also. So it's not just the medical you know, profession he's in. He's been active as a personality. He's been doing wonderful things all around him. His ये जो सेशंस लेते हैं, काफी सारे इन्होंने पहले भी वर्कशॉप्स ले चुके हैं, एंड रेजिडेंट्स से रिलेटेड आई थिंक दिस इज फर्स्ट और सेकंड है शायद जो रेजिडेंट्स को ये पहुंचना चाह रहे हैं. So this is part of Dr. Ashish part, and those who don't know me, please sorry, I should have introduced myself also first. You know, मेरा नाम राजीव सिंह है. मैं NOFA का अध्यक्ष हूँ, NOFA का president, and NOFA is one association for high-rise apartments जो कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के लिए जो उनकी इश्यूज हैं उसको जनरली देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स इसमें इन्होंने इस बार नोफा ने काफी मेजर रोल प्ले किया है. जो लास्ट 9 months हैं पैंडेमिक की वजह से बहुत ही इसमें सक्रिय रहे हैं, काफी एक्टिव रहे हैं, जिससे कि हाई राइज में कम से कम फैले. तो आज हम जो सेशन में I'll just quickly wind up, you know, जो है कि आज जो सेशन है मोस्टली ये है कि लोगों को देखिए, जो आज से 9 महीने पहले जानकारी थी हमें कोविड की, और जो डॉक्टर्स को जो जानकारी थी वो आज कहीं बहुत ज्यादा एडवांस है अभी इस समय. जो आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम मार्च में आता था, मार्च में जब ये एंटर किया था इंडिया में कोविड, तो लोग कोविड के नाम से घबरा जाते थे, डरते थे बहुत. और in extreme case everybody used to think कि ये death warrant आ गया है अगर कोविड आ गया है. तो that of course, and doctors को भी उस समय knowledge कम थी इस बारे में कि किस तरह से patients को treat करा जाए. लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा इसमें काफी काम हो चुका है. Doctors are much more experienced in handling. हमारी health care system जो है, maybe it is still not on a scale of 10, it is not very high, but still it is much better than what it was in March to handle at least the कोविड जो कोविड इन्फेक्शन को है उसको हैंडल करने के लिए. तो फर्स्ट तो ये होगा हमारा इसमें कि व्हाट ऑल प्रिवेंशन मेजर्स वी कैन टेक. ऑफ कोर्स सबको मालूम है, लेकिन आई थिंक फ्रॉम वी नीड टू लिसन इट फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, वो बेटर रहेगा. दूसरी चीज ये है कि विंटर्स आ रही हैं और पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है.
तो इसमें क्या हम स्पेशल केयर ले सकते हैं? पॉल्यूशन की वजह से आप देख रहे हैं कि अभी केसेस और बढ़ते जा रहे हैं और फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्राउड बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग काफी मार्केट में निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से संक्रमण जो है ये फैल रहा है काफी। तो एक ये है कि विंटर्स में और पॉल्यूशन में उसको कैसे हैंडल करा जाएगा। एंड लास्टली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उस पर इतना काम अभी नहीं हो पाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कोविड के कोविड एक बार जब किसी को हो जाता है तो उसमें पोस्ट कोविड केयर क्या होनी चाहिए। उसमें हालांकि अभी भी उसमें रिसर्च वर्क चल रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं वो अभी, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना हम लोग को मालूम है, वो उसको सारा का सारा डॉक्टर साहब आज हमें एक्सप्लेन करेंगे, हमारे साथ बात करेंगे। विद दैट आई वुड एंड एंड आई वुड रिक्वेस्ट Dr. Ashish to take over. Thank you once again, Dr. Saab, very much for being part of this meeting. And मैं जितने भी participants हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में ही करें, बीच में कोई बात ना करें और सब म्यूट रहें। थैंक यू सो मच। यस डॉक्टर आशीष, प्लीज। Thank you, Rajiva. Thank you very much for your kind introduction and giving me the opportunity to share my views to educate the people about the current scenario, which is to me looks very gloomy right now. But मैं एक बात और बता दूं कि आपने इतनी अच्छी बात कही है about me being a runner, तो कहीं ना कहीं आप भी मेरे इंस्पिरेशन थे उसमें रनर बनने में, क्योंकि मैं जब सिर्फ घूमने के लिए जाया करता था तो मैं देखता था कि एक बंदा जो है बड़ी शिद्दत से दौड़ रहा है। So I said that why can't I be like him, and that was one of the inspiration. And you have been inspiring a lot of people here in Megdutam and around, and thank you for being with us. So I think there is a good synergy between the social cause, and that's why we are here. So without taking too much of time, let me start with my short and sweet presentation. What I'll do is I will share my screen so that everybody can see. I hope you are able to see my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir, we can see. Rajiva, Shivan? Rajiv, sir, you are muted. Okay. We cannot hear you, whatever you are saying. Muted? Yes, sir, we can see it. Dr. Ashish, we can very well see it. Can you hear me? Yeah, we can hear you also, loud and clear. Yeah. Okay. Sir, we can hear you, but we cannot see you. Because you are seeing my screen, right? Hello? Sir, you have start sharing your video, so please share your video as well. I request you to share your video as well, sir. I start the video. The PPT. Yeah, now it's perfect, sir. Rajiva, are you able to see the screen and hear me? Yeah, it's perfect. I'm able to see your presentation. Okay. So, first of all, I apologize for having this title, Surviving in the Suffocating Times, but I think this is what the reality is. And again, sorry for sharing such a gloomy picture in the background, but this is what the reality is. And as a true professional, as a doctor, it is my job to communicate the right things to the masses. That is what I'm doing today. Why it is suffocating these days? अभी तक जो है हमारे साथ में कुछ परेशानियां थी, वो परेशानियां हर साल आती थी, सर्दी आती थी और प्रदूषण आता था। हम खामखा में दिवाली को बदनाम करते थे, पर वो प्रदूषण सर्दियों का प्रदूषण था। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण और जो हम यहाँ से पोल्यूशन जो जनरेट कर रहे हैं उसके कल्मिनेशन के कारण वो परेशानियां हुआ करती थी। हमने दिवाली पे पटाखे बनाना बंद कर दिए, फिर भी प्रदूषण रहा।
हमने पराली को जलाने के लिए इतने सारे प्रयोजन कर लिए, उसमें से कई सक्सेसफुल हुए, कई नहीं हुए, तो भी प्रदूषण रहा। हमने ऑडी बंद कर लिया तो भी प्रदूषण है। हमने रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दिया तो भी प्रदूषण है। कुछ ना कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, जो कि पिछले 4-5 सालों में प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है और ये एक एनुअल इवेंट हो जाता है। हम हर साल पहले दिवाली का इंतजार करते थे, अब उसके पहले हम प्रदूषण का इंतजार करते हैं कि कब AQI जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। बट उसके साथ साथ एक परेशानी और आ गई हमारे साथ में, और जिसने कि बनाया है ये डेडली ट्रायड। एक पोल्यूशन, एक विंटर सीजन और एक कोरोना। जो मैंने आंकड़े यहां पे लिखे हैं, आज का AQI है 593 प्लस। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ये सारे विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं। दूसरा मैंने आंकड़ा लिखा है 27/13, 27/13। दिस इज द टेम्परेचर दिस इज expected to go down in next few days, and coupled with this there is no wind. That makes the things worse. And we are in Delhi NCR, we are detecting at least 7,000 plus cases every day, and there are good percentage of patients who are not able to make it every day. क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि एक तो हवा नहीं चल रही है। सर्दी का तापमान होने से जो वातावरण में जो हवा है और जो प्रदूषण है और जो पार्टिकल्स हैं और जो गैसेस हैं, वो सब नीचे की ओर धकेली जाती हैं, वो ऊपर ज्यादा नहीं उठ पाती हैं। और उन पार्टिकल्स पे, उन पार्टिकुलेट मैटर्स पे हमारा कोरोना सवार हो गया है, जो चारों तरफ बिखर रहा है, और उसके कारण में हमें सर्दी, खांसी, बुखार और कोविड-19 जैसी समस्याएं हो रही हैं। Now, what are the health effects of the pollution? I'll not take too much of time here, but the carbon monoxide, the particulate matter, the ozone, lead, volatile organic compounds, SO2, NO2, etc., pesticides, soil contamination, respiratory illnesses, the bacteria, parasites, chemical, all these things, they are causing and they are taking a huge toll on human bodies. Headache, fatigue, respiratory illnesses, cardiovascular illnesses, increasing myocardial infarction, हृदयाघात की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। सामान्य दस्त, बुखार, कॉन्स्टिपेशन, there is an increased risk of cancers. और इन सबसे ज्यादा, इन सब के होते हुए जो मानसिक चिड़चिड़ापन है, जो बेचैनी है, जो डिप्रेशन है, वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन के कारण वो बढ़ता जा रहा है। Now, what about the cold? So cold in itself leads to increased heart attacks, increased strokes, and this is a normal phenomenon. Forget about the pollution. The cold in itself can lead to increased heart attack in elderly, increased stroke, increased rhinitis, common cold and flu, and increased pneumonia. And the corona. What are the symptoms of corona? You have got, some patients have got high fever, there is cough, breathlessness, sore throat, joint pain, body pain, and worst of all, you have this cyanosis. This occurs when the oxygen starts dropping down. ये तब होता है जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। एक बहुत ही अनयूजुअल फिनोमेना इस कोरोना में देखा गया है, जो पहले किसी भी बीमारी में नहीं देखा गया, और उसे टर्म दिया गया है हैप्पी हाइपोक्सिया। और वो मैं थोड़ा विस्तार में बता दूं। हैप्पी हाइपोक्सिया इज व्हेन यू डू नॉट रियलाइज दैट योर ऑक्सीजन लेवल्स आर गोइंग डाउन। जब आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहे हैं। आपको लगता है मुझे कोई सिम्टम नहीं है, आप इस गफलत में रहते हैं कि मुझे कोई परेशानी है ही नहीं, कोई सिम्टम है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, सांस भी नहीं चल रही है,
आप आराम से बैठे हुए हैं और जब आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 85, 90 तक पहुंच चुका है। तब बहुत देर हो चुकी रहती है, तब आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप अस्पताल में जाएं, बेड मिल जाए, अस्पताल में जाएं और अब वहां पर जाके भर्ती हो जाएं और जो आपकी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाए। तो और दूसरी परेशानियों में हमें पहले सिम्टम्स आते हैं, पहले हमारी सांस फूलती है, थकान होती है और छाती में जकड़न होती है, और उसके बाद हमने देखा है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है। पर ये एक विरली ही ऐसी नई बीमारी आई है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले कम होता है और आपके लक्षण जो है वो बाद में आते हैं, और इसीलिए उसे हैप्पी हाइपोक्सिया की संज्ञा दी गई है। इसीलिए देखा गया है और इसीलिए पॉपुलराइज किए गए हैं ये पल्स ऑक्सीमीटर, जिसको जब भी भले कितना ही एसिम्प्टोमेटिक हो, वो अगर इन पल्स ऑक्सीमीटर को अपने साथ में रखे और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहे तो आप उसको सही समय पर पिक कर सकते हैं। 2 दिन तक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 98% रहा, तीसरे दिन 96 पे आ गया तो आपने थोड़े अलार्मिंग हुए उसमें, और चौथे दिन जब वो 95% पे आया तब आपने हॉस्पिटल में बेड ढूंढना शुरू किया। अगले दिन तक जब तक वो 93% पे आया आपको बेड मिल गया। इस तरीके से होम मॉनिटरिंग करते हुए, राजीवा भी जानते हैं, मैंने कई पेशेंट्स को सही समय पे पकड़ा है और उन्हें फिर हमने अस्पताल में जाने की सलाह दी है। इससे जो अननेसेसरी एडमिशंस हैं उनको भी रोक सकते हैं हम, और जो जरूरी पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल में होना चाहिए उनको इस हैप्पी हाइपोक्सिया को दरकिनार करते हुए हम उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा सकते हैं। तो होता यह है, जब आप डे 1 पे मरीज हॉस्पिटल जाता है तो ये इस तरीके का लंग रहता है विच इज नीट एंड क्लीन एंड नाइस एंड ब्यूटीफुल। ये बीच में हार्ट है और ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है साथ में, और you can see they are nice and dark and clean. But what happens after a day or two, you come to this picture on the right side. The entire lungs, the right lung, the left lung, all is filled with material and the exudative material, and that is because of the inflammation of the corona. ये कोरोना के कारण, संक्रमण के कारण उपजी हुई समस्या है, जिससे ये जो फेफड़े हैं जिनका काम, आई होप यू आर एबल टू सी माय लेजर पॉइंटर। Yes sir, we are able to see it. Okay. So ये जो लंग्स हैं जो जिसमें कि ऑक्सीजनेशन होना चाहिए, ये इनकी मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, इनमें फ्लूइड्स और एक्सुडेटिव मटेरियल भर जाता है, और जिसके कारण की आपके ऑक्सीजनेशन जहां से होता है वो स्थिति में परेशानी होती है, जिसके कारण कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग एवरी डे एंड दिस इज सो फ्राइटनिंग, सो स्कैरी, आई कांट इवन टेल यू अबाउट दिस। तो ये कोरोना जो है ये सिर्फ लंग्स को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स हैं, द कॉमन बीइंग द माइल्जिया, एनोस्मिया, स्ट्रोक, जो हाथ पांव में दर्द होता है, और जो जीभ का स्वाद और सांस में सुगंध लेने की जो शक्ति है वो आपकी कम हो जाती है। हेडेक्स होते हैं, इसमें डिजीनेस, चक्कर आना होता है, कुछ सीरियस केसेस में स्ट्रोक होता है, और बाकी दूसरी परेशानियां भी और अनकॉमन है और बट सीरियस हैं। किडनीज में आपकी यूरिन में देखेंगे तो आपको ब्लड और प्रोटीन निकलता है अगर हम यूरिन रूटीन करवाएंगे, जिसका के कारण होता है एक्यूट किडनी इंजरी। लिवर एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। समटाइम्स एब्डोमिनल पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट इज आल्सो very common in corona. Now there are few dermatological and endocrinal problems, but more importantly are the cardiac issues, like it leads to sudden myocardial ischemia. जब ये कोरोना नया शुरू हुआ था इटली में और यूएस में, तब देखने में आया था कि अचानक से एक्यूट हार्ट अटैक से आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई। तब तक किसी को जानकारी नहीं थी कि इन मरीजों को दरअसल कोरोना है और उसके कारण इनको हार्ट अटैक हो रहा है। उनको तुरंत एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए लेके जाया जाता था,
उनकी जान बच जाती थी। पर चूंकि डॉक्टरों को इस बात का आभास नहीं था कि इनको कोरोना हो सकता है या ये कोरोना से संक्रमित हैं, तो वो डॉक्टर्स को कोरोना हो गया। तो इनिशियल फ्यू डेज में जो मैक्सिमम मोर्टेलिटीज हुई डॉक्टर्स में, जो हेल्थ केयर स्टाफ में जो हुई, वो सारे कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक डॉक्टर्स थे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी प्रोटेक्शन के पेशेंट्स को हार्ट अटैक के लिए ट्रीट किया। तो एक ये बहुत ही दुखद घटना रही है। फिर उसके बाद जैसे जैसे राजीव जैसे बता रहे थे कि हमें अब जानकारियां धीरे धीरे करके आना शुरू हुई हैं, तब हमें और भी इसके बारे में हम वाइजर होते जा रहे हैं, हमें जानकारियां मिलती जा रही हैं। सो मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट आर now increasingly common, and now we realize that these are the patients, those who do not have any other specific or common symptoms of corona, but can present directly like a heart attack. The most dreaded thing that I fear of, apart from the lung condition, is the thromboembolism. Thromboembolism means, और ये अनफॉर्चुनेटली कॉमन भी बहुत है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मींस कि जो ब्लड है, आपके ब्लड में एक शक्ति होती है कि कहीं से अगर कट लग जाए तो वो ब्लड बहने लगता है और बॉडी उसको कोएगुलेट कर देती है, रोक देती है। वो रोकने की जो शक्ति है ब्लड की, जो एक नॉर्मल लेवल पे होनी चाहिए, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ब्लड जो है वो आपकी वेन्स में या आर्टरीज में खुद ही वो उसका खून का थक्का जमने लगता है। आपने बहुत बार सुना होगा आजकल, और आपके डॉक्टर्स ने भी कई बार बोला होगा जिन पेशेंट को कोरोना हो चुका है कि अपना एक डी डाइमर का टेस्ट करवाएं। ये डी डाइमर का टेस्ट जो है ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को बताता है। अगर ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, दैट मींस यूजुअली ये लेग मसल्स या हाथों की मसल्स वेन्स में ये खून का थक्का जमता है, और फिर कुछ समय के बाद ये खून का थक्का वहां से छूटता है और सीधे जाके लंग्स में लॉज हो जाता है, उसमें जाके रुक जाता है, और जिसके कारण की एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है। मरीज की कई बार इस चलते जान भी जाती देखी गई है। ये वो पेशेंट्स रहते हैं जो बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं और कल शायद या परसों शायद डिस्चार्ज हो जाएंगे, या शायद डिस्चार्ज हो भी गए और घर पहुंच गए, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है या वापस से उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और उसका एक बहुत प्रमुख कारण है ये पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो कोरोना सिर्फ लंग्स के लिए या सिर्फ सर्दी जुकाम नहीं है, ये बहुत कुछ चीज भी कर सकता है। ये एक दुखद समाचार है, पर अच्छा समाचार ये भी है कि ऐसा होने वाले लोग जो हैं वो 50% लोगों को ये परेशानियां आएंगी, बल्कि 90, 92, 95% लोगों को सामान्य बुखार हो जाएगा। पर इसमें, इस घटना में सबसे, दिस इज $1 million क्वेश्चन, ये लाख टके का सवाल है कि करें तो आखिर करें क्या, जब ये तीनों चीजें हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी हैं। प्रदूषण है, सर्दी है और कोरोना है। ये जो ट्राइड जो दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए काल बन गया है, इस समय हम करें क्या? अब हमें जो भी करना है वो व्यक्तिगत स्तर पे ही करना है। सरकार ने जो करना था वो कर दिया, समाज जो कर सकता है वो कर ही रहा है, और कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलेंगी। कई हमारी हैबिट्स नहीं बदलेंगी, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं बदलेंगी, कार का जो पोल्यूशन है वो कम नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये तुरंत नहीं ठीक होगा। जो अब हमें करना है वो अब हमें ही करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जिसके जो पॉपुलराइज हुआ है, ये बहुत जरूरी है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जब भी फोन लगाएंगे अमिताभ बच्चन सबसे पहले आपको यही याद दिलाएगा, आप प्लीज उसे इग्नोर ना करें, उसे जरूर उसका पालन करें। एक ये तरीका है जिससे कि हम कोरोना के स्प्रेड को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हाथ धोने हैं। अगर खांसी या जुकाम हो और छींक आए तो आप या तो किसी टाल में या रुमाल में उसको लेंगे, बट अपने मुंह को अपने हाथों से कवर नहीं करेंगे,
अगर कुछ ना मिले तो अपनी कोहनी से कवर करेंगे। टिश्यूज जो भी यूज करेंगे मुंह पहुंचने के लिए, उन्हें तुरंत डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे। नमस्ते इज द बिग बज़वर्ड दीज डेज। पूरा विश्व अब नमस्ते कर रहा है। हाथ मिलाना बंद करें। अवॉइड क्राउड्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स। अवॉइड टचिंग योर फेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। हो क्या रहा है कि हमारे हाथ से हम कभी दरवाजा छू रहे हैं, डोर नॉब छू रहे हैं, टेबल छू रहे हैं, मोबाइल फोन छू रहे हैं, लोगों से हाथ भी मिल रहे हैं, रेलिंग पे हम हाथ लगा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं तो कोई चीज पकड़ रहे हैं। वहां तक ठीक है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये कोरोना आपकी बस स्किन पे है या आपके शरीर के अंदर नहीं गया है, बट जैसे ही आपने वो अपना हाथ उठाया, अपने नाक पे, मुंह पे, आंख पे लगाया, तो उस समय आपके हाथ पे जो कोरोना वायरस है उसको आपने अपने शरीर के अंदर पहुंचा दिया। तो इसलिए हैंड वॉश का महत्व है। बट इवन इन बिटवीन हैंड वॉश, प्लीज डू नॉट टच योर फेस। अपने फेस को टच ना करें। फ्रीक्वेंटली अवॉइड नॉन। Dr. Saab, we lost your audio, I suppose. सत्येंद्र, आप देखेंगे जरा? Yeah, I'm looking into it, sir. Hello. Yeah, you're back. Yeah, we can hear you now. Yeah. I'm so sorry. I'm so sorry about this. Let me share my screen once again. Yeah. Yeah. So, so clean all the shared surfaces, avoid non-essential travel, call ahead before going to clinic or hospital. But ये इमेज मेरे को एक चीज और बताती है, अपना मोबाइल आप अपने पास रखिए, न किसी दूसरे का मोबाइल लेना है, न किसी को अपना मोबाइल देना है। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी जगह है जहां पर कि हम अपना हैंड वॉश तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना मोबाइल अपने पास रखिए, मैं अपना मोबाइल अपने पास रखता हूं। वी शुड नॉट शेयर द मोबाइल्स frequently. Isolate yourself if you are sick or if there is a risk of complication and the entire world is doing work from home. That is a big nuisance. And wear the mask more often than not. Now, what can we do to make yourself, ultimately it is your immunity that will take care of your body. Drink plenty of water. इससे क्या है, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, बॉडी के सेल्स जो हैं वो हाइड्रेटेड रहेंगे, उनमें द्रव्य की मात्रा अधिक रहेगी और वो इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ाती है। जो भी आपके जैसे ही स्किन में डिहाइड्रेशन होता है, स्किन पार्च्ड हो जाती है, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है वो कम हो जाती हैं। इसलिए पानी अधिक मात्रा में पिएं। अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, जैसे किडनी के कोई पेशेंट्स होंगे, हार्ट के कोई पेशेंट्स होंगे जिनको कि पानी पीने के लिए सलाह नहीं दी होगी, उनको छोड़ के बाकी हम सभी को पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, uncooked fruits and vegetable, fresh fruits and vegetable, they are a rich source of antioxidants and they are very good for your health. बाजार से कैप्सूल, केमिस्ट से कैप्सूल खरीदने के बजाय अगर हम फल वाले से फल खरीदेंगे तो वो हमारे शरीर को ज्यादा फायदा देगा वनस्पति की
उन कैप्सूल से। ऑब्वियसली डायबिटिक्स हैं, वो कुछ तरीके के फल नहीं खा सकते हैं, या कोई और दूसरे रीनल पेशेंट्स हैं वो कुछ तरह के फल नहीं खा सकते हैं, तो अपनी डॉक्टरी सलाह लें। बट अगर फिलहाल आपके पास आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो फिर फल और सब्जियां, ताजे फल और सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकें, उनको जरूर यूज करें। लाइट योगा, लाइट एक्सरसाइज विल ऑलवेज हेल्प। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आप करिए, पर प्रदूषण के इस माहौल में मेरी सलाह ये रहेगी कि एक्सरसाइज के लेवल को थोड़ा सा कम रखें, और कोशिश करें कि जब ये धूप हो, सूरज निकल आए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, और उसके कारण जो है आपका AQI लेवल और जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा धूप निकल आए, उसके बाद आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करें। बट इंडोर रह के या खुले पार्क में आप जेंटल योगा आप जरूर कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए। एंड स्लीप इज ऑल्सो इम्यूनिटी बूस्टर। नाउ दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर ऑल द एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स, बट sleep indeed is a immunity booster. रात को 10 बजे मेरे ख्याल से हमें अपनी सारी स्क्रीन्स बंद करके बेड पे जाना चाहिए, और एक गहरी नींद आपको हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। Now there is a new term that has come into market. This is a new kid on the block, and this is post-COVID. In fact, COVID से भी ज्यादा नया ये post-COVID है। जब ये COVID आया था तब हम सिर्फ COVID के बारे में जानते थे, पर पिछले 2 महीनों से ये post-COVID वर्ड जो है ये काफी चर्चा में है, और स्पेशली अमंग द डॉक्टर्स। I think there is some noise in the background. Anyway, so ये पोस्ट कोविड एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो आजकल हमारे इनफैक्ट इन डॉक्टर पार्लेंस has become a very common word. Now what is post covid? पोस्ट कोविड वो स्थिति है जबकि आपका कोविड हो चुका है और आप कोविड से नेगेटिव होके बाहर निकल चुके हैं, तब भी अगर आपको कुछ समस्याएं हैं तो उसे हम पोस्ट कोविड की स्थिति में रखेंगे। और वो क्या परेशानी है? फटीग, थकान जो है, वो थकान देखा गया है 3 से 4 हफ्ते तक मरीजों में थकान है, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा मरीजों में ये थकान देखी गई है। नॉर्मली जो हमारी एक्टिविटी लेवल था कोविड के पहले, कोविड के बाद उसको रिकवर करने में, उस तक पहुंचने में हमें बहुत समय लग रहा है। कई लोगों को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, वो रात में ढंग से सो नहीं पाते हैं। बॉडी एक ये, और खास तौर पे विशेष करके जो वृद्धजन है उनके घुटनों में, कोहनी में, जोड़ों में दर्द जो है वो काफी लंबे समय तक देखा गया है। ये पहले दूसरे वायरल इलनेसेस में भी होता था, चिकनगुनिया में, डेंगू में, और नॉर्मल वायरल इलनेसेस में भी होता था, और ये कोविड में कुछ ज्यादा देखा जा रहा है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अगले 3-4 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक एक लो ग्रेड फीवर विच इज यूजुअली लेस देन 100, बट वो लो ग्रेड फीवर और फीवरिश फीलिंग की कंप्लेन करते रहते हैं, जो बहुत समय के बाद ही धीमे धीमे जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए तो तैयार हैं, बट उनका ऑक्सीजन पे डिपेंडेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऑक्सीजन निकालेंगे उनका सैचुरेशन कम होता जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम घर पे ऑक्सीजन की व्यवस्था करके घर पे उनको भेज रहे हैं। एंड दिस ऑक्सीजन डिपेंडेंस इज क्रिपलिंग देयर लाइफ, एंड देयर आर सम